Hello everyone, welcome to Perfection IS. Today in this video, we are launching a new series where we'll be having daily mains answer writing. That is, every day one question from GS1, GS2, GS3, GS4. It means every day one question with proper detailed analysis of the question will be discussed here. So here every day at 8 p.m. means 8 baje one question will be given. Now what is the coverage of this series? Basically the main motto is how to write an answer, because it is the mains exam which will give you ranks. After you clear prelims, most of the students struggle with answer writing, because answer writing वहाँ पे आपका knowledge, concept level पे knowledge, analytical knowledge, content, structuring and your own viewpoint, ये 5 चीज़ ज़रूरी है. So इस सीरीज़ का जो significance है, it is to make you understand or to make you know कि what exactly is mains answer writing. So यहाँ पे every day 8 बजे we'll be covering questions from GS1. Suppose one day there will be a GS1 question, second day there will be a GS2 question, third day there will be a GS3 question, and fourth day there will be GS4, that is ethics question. So this cycle will be repeated every day. Now in this particular planning, this is the coverage. It means the questions will be original, it will be taken from article or any current affairs or any important static topics. For example, we'll be having static topics which will be more of conceptual in nature. For example, polity. So when it comes to polity or when it comes to economy, we'll be having concept level questions, because concept level questions are also asked in paper or mains examination. Coming to static topics, another dimension of static topics is factual data. Now when it comes to factual, here GS1, that is history. History is more of factual, but yes, there are also concept level or analytical questions. So it will be a mixed bag of both factual and analytical question when it comes to history. Now the third dimension is current affairs. So current affairs will play a very big part in GS2, that is polity, also GS1, that is society, and also GS3 when it comes to agriculture, environment, science, everything. So we'll try our best to cover a current affairs in a format of mains answer writing, and that too in word limit. Fourth is, these 3 things are very important for mains answer writing. First is understanding the demand of the question. Now what exactly is asked in the question? Exactly पूछा क्या गया? It means first of all when you see a question, हमको ये देखना है कि कीवर्ड क्या है, उस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है और एग्जैक्टली पूछा क्या है. सो हर क्वेश्चन का एनालिसिस उस तरीके का होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव टू राइट इट टू द पॉइंट एनालिसिस. इट मीन्स वॉट एवर इज आस्क्ड उसी चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज द थिंग इज इन मेन्स वी नीड टू राइट एन आंसर from a bureaucratic point of view. As a bureaucrat हमको लिखना है without any political ideology, without taking any sides. ठीक है, सो यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, दैट टू द आंसर विल बी इन वर्ड लिमिट. सबसे बड़ी चीज है द आंसर शुड बी इन वर्ड लिमिट. यहाँ पे जो हम आंसर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो भी आंसर मैं डिस्कस करूंगा आगे के वीडियोस में, वो एग्जैक्टली वर्ड लिमिट पे रहेगा, दैट टू ईदर 150 वर्ड और 250 वर्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. यस, 20-30 वर्ड आगे हो सकता है, लेकिन मोर ओवर इट इज अडहरिंग टू वर्ड लिमिट. नाउ आफ्टर गिविंग द एनालिसिस, हमको एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट भी देना है. इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन अ वे फॉरवर्ड एंड ए कंक्लूजन. नाउ वे फॉरवर्ड क्या होता है? वे फॉरवर्ड ये होता है कि हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं और सरकार के तरफ से क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, दैट इज वे फॉरवर्ड. नाउ व्हेन इट कम्स टू कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स
योर ओपिनियन, आप क्या ओपिनियन रखते हैं उस चीज पे, उस पर्टिकुलर इश्यू पे। देखिए ये जो चीज है ये हर क्वेश्चन के लिए नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मोर ओवर व्हेन इट इज सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन और इश्यू बेस्ड क्वेश्चन, वहां पे हमको वे फॉरवर्ड भी देना है, हमको अपना ओपिनियन भी देना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इन हिस्ट्री, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, वहां पे कंक्लूजन ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे व्यू पॉइंट भी देंगे एंड दैट व्यू पॉइंट शुड बी बैलेंस्ड इन नेचर। सो यहां पे हम जैसे GS1, GS2, GS3, GS4, यहां पे मॉडल आंसर्स रहेगा और वर्ड लिमिट पे रहेगा, ठीक है। वर्ड लिमिट पे रहेगा, दैट इट विल वर्क लाइक ए मॉडल आंसर। द आंसर्स विल नॉट बी ऑफ 500 वर्ड्स और 600 वर्ड्स एज अवेलेबल इन द मार्केट। यहां पे क्लियर कट हम फोकस कर रहे हैं कि आंसर जो होगा वर्ड लिमिट पे होगा। और जैसे कि GS1 में हम यहां पे कवर करेंगे, GS1 में हम हिस्ट्री कवर करेंगे इंक्लूडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। हम मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिएवल, उसका आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, रिलीजियन, सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। सोसाइटी कवर करेंगे, सोसाइटी का क्वेश्चंस जो कि न्यूज में है, और उसको थोड़ा स्टैटिक ओरिएंटेड का फ्लेवर देके हम क्वेश्चन यहां पे बनाएंगे और उसी का आंसर यहीं पे सॉल्व करेंगे। ऑल्सो GS1 ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी में न्यूज में है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, एल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, बहुत सारे ओशन करेंट्स हो गए, और उसका थोड़ा एनवायरमेंटल डायमेंशन जो है वो भी कवर करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं GS3 में भी एनवायरमेंटल डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू GS2 में हम कवर करेंगे पॉलिटी कवर करेंगे। जैसे कि पॉलिटी में बहुत सारे डायमेंशंस है, जैसे कि पहले तो प्रियम्बल का क्वेश्चंस लाएंगे, और प्रियम्बल का जब क्वेश्चंस लाएंगे थोड़ा एनालिसिस ओरिएंटेड लाएंगे, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक करके क्वेश्चन लाएंगे। तो प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और लाएंगे जुडिशियरी के बारे में क्वेश्चन लाएंगे, प्रॉब्लम्स क्या है जुडिशियरी में। सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में क्वेश्चन लाएंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में लाएंगे, पार्लियामेंट के बारे में लाएंगे, और जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आएगा तब हम मनी बिल्स के बारे में लाएंगे, ठीक है। एंटी डिफेक्शन के बारे में लाएंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो पूरा का पूरा जो पॉलिटी का जो एनालिसिस क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस आप एक बार देखने के बाद जब आप एनालिसिस देखेंगे तो जो प्रीलिम्स में जो कॉन्सेप्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो भी कहीं ना कहीं ईजी हो जाते हैं सॉल्व करने में, ओके। GS2 में और भी स्कीम्स है जो कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो कवर करेंगे। GS2 में सिटीजन चार्टर कवर करेंगे, ठीक है। और सम गवर्नेंस क्वेश्चंस यहां पे कवर करेंगे, गवर्नेंस रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस है वो भी इस सीरीज में हर दिन एक क्वेश्चन के हिसाब से कवर होगा। नाउ कमिंग टू GS3, यहां पे हम इकोनॉमिक क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। एनीथिंग विच इज इन न्यूज प्लस स्टैटिक। फिर हम यहां पे एनवायरमेंट का क्वेश्चन कवर करेंगे, जो भी एनवायरमेंट का स्टैटिक हो गया, कोई एक्ट हो गया, या फिर कुछ स्पीसीज न्यूज में है, या फिर ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के बारे में कवर करेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा साइंस के बारे में कवर करेंगे, कोई भी एक टेक्नोलॉजी जो कि न्यूज में है, स्पेस हो गया, हमारे इंडियन स्पेस हो गया, या फिर कोई बाहर का टेक्नोलॉजी जो भी न्यूज में है, विल फोकस ऑन दैट। प्लस यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के बारे में कवर करेंगे। वैसे तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आ ही जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक एग्रीकल्चर क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर करेंगे। प्लस एक एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी भी कवर करेंगे। नाउ कमिंग टू फाइनल थिंग इज GS4। अब जब GS4 की बात आती है, GS4 में हम एथिक्स कवर करेंगे। यहां पे बेसिकली जब एथिक्स कवर होगा, एथिक्स का हर डायमेंशन जो 9 से 10 चैप्टर्स है, 9 to 10 चैप्टर्स जो है, जैसे कि व्हाट इज एथिक्स, मोरालिटी, एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड,
विथ एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स के साथ ही कवर करेंगे. एंड आई विल शो यू हाउ टू गिव अ इंडिविजुअल एग्जाम्पल, हाउ टू गिव अ पर्सनालिटी एग्जाम्पल, कहां पे कौन सा चीज यूज करना है, एक आंसर के फॉर्मेट में क्लियर करेंगे ताकि हेल्प हो जाए आंसर राइटिंग में. इंटीग्रिटी के बारे में यूज करेंगे, वर्सेस ऑनेस्टी विथ एग्जाम्पल्स, जो भी फाउंडेशनल वैल्यूज है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हमारा एथिक्स का भी उस हिसाब से कवरेज होगा. सो दिस इज हाउ आवर डेली मेंस आंसर राइटिंग विल बी देयर. सो विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, एवरी डे 8 PM, 1 क्वेश्चन ईच, एवरी डे फ्रॉम GS1, GS2, GS3, GS4, एक रोटेशन के हिसाब से आएगा एवरी डे एट 8 o'clock. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.